کل کا جو فرسٹ لیسن تھا وہ تھا بیسک کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کون سا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، کون سا لیسن پڑھ رہے ہیں. تو وہ بیسک موٹی موٹی اس کو بولیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں محاورے. تو جو بھی لفظ ہم زبان سے نکالتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ کل یہ ہم نے پڑھا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ جو بھی ورڈ ہم زبان سے نکالتے ہیں وہ یا تو میننگ والا ہوگا یا تو موضوع ہوگا یا تو محمد نہیں، یا تو معنی دار ہوگا، یا تو معنی دار ہوگا یا بے معنی ہوگا. ہم کوئی بھی ورڈ بولیں گے تو یا تو معنی دار ہوگا یا بے معنی ہوگا. تو بے معنی ورڈ سے ہم کو لینا دینا نہیں، جس کو محمل بولتے ہیں اردو میں، عربک میں. ہم کو لینا ہے معنی والا جس کو موضوع بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ موضوع معنی دار ورڈ. اب وہ معنی دار ورڈ کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ دو. کیا کیا؟ مفرد اور مرکب. مفرد اور مرکب. مفرد کسے کہتے ہیں؟ سنگولر، ایک جس سے ایک معنی پیدا ہو، جس سے ایک معنی نکلے. مفرد کسے کہتے ہیں؟ ایک معنی. اور مرکب کسے کہتے ہیں؟ ایک سے زیادہ معنی. اچھا، پھر مرکب کی تین قسمیں تھی. نہیں، مرکب مفرد کی کتنی قسمیں تھی؟ تین قسمیں تھی. اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف. اسم کس کو بولتے ہیں؟ نام کو، ناؤن کو. فعل کس کو بولتے ہیں؟ کام کو. ورب کو، کام کو. اوکے. حرف کس کو بولتے ہیں؟ لیٹرز کو، ورڈ کو. لیکن ہم لیٹرز بولیے. حرف کس کو بولتے ہیں؟ لیٹرز. اچھا، اس کے بعد مرکب کی دو قسمیں ہم نے پڑھی. جی. کیا کیا پڑھی؟ مفید، غیر مفید. مفید اور غیر مفید. یعنی ایک سے زیادہ جو ورڈ معنی دے گا وہ مرکب ہے. اس مرکب کی دو قسمیں، مفید، غیر مفید. مفید مینس فائدہ دینے والا مرکب، غیر مفید مینس جو فائدہ نہ دے. تو یہ چند بیسک چیزیں تھی. اس کے بعد ہم نے کل آپ کو سمجھایا کہ مرکب کو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، ابھی ہم مفرد کو لیتے ہیں. کس کو لیتے ہیں؟ مفرد مینس کیا؟ جو سنگل معنی دے، جو ایک معنی بتائے اس کو مفرد بولتے ہیں. اس مفرد کی تین قسمیں تھی، اسم، فعل، حرف. تو اسم، فعل، حرف میں سے ہم نے اسم کو لینا ہے. ابھی ناؤن کو پڑھیں گے. کس کو پڑھیں گے؟ تو اگر باقی چیزیں کچھ بھی یاد نہیں رہتی ہے تو آپ کو اتنا تو یاد رہنا چاہیے، کمپلسری ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اسم پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ اسم کو کیا بولتے ہیں؟ ناؤن پڑھ رہے ہیں، ناؤن بولتے ہیں. تو یہ بھی یاد رہا تو کافی ہے. باقی چیزیں اپنے آپ اپنے موقع پر آپ سمجھ جائیں گے. تو ہمارا لیسن کیا چل رہا؟ بولو، لیسن کا نام کیا ہے؟ اسم. اوکے. اب اسم کی بہت ساری قسمیں ہیں. اسم کی قسمیں جینڈر کے اعتبار سے میل فیمیل ہوتی کہ نہیں ہوتی. ناؤن کی قسمیں اور اسم کی قسمیں عام خاص کے اعتبار سے، جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں پراپر ناؤن اور کامن ناؤن. تو وہ بھی ابھی ہم نہیں پڑھ رہے. ہم ابھی یہاں پر پڑھ رہے ہیں اسم کی قسمیں گنتی کے اعتبار سے، کاؤنٹنگ کے اعتبار سے. اسم کی قسمیں رہتی ہیں، ناؤن کی قسمیں رہتی ہیں. وہ تین ہیں. کیا کیا ہے بولو؟ واحد، تثنیہ، جمع. گنتی کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ ٹھیک ہے. تو آپ آج کل کا لیسن آپ نے مس کر دیا، کوئی بات نہیں. لیکن ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہیڈنگ کیا ہے ہمارا؟ ٹائٹل آج اسم. کس کو بولتے ہیں؟ ناؤن کو بولتے ہیں. ناؤن کی قسمیں بہت سارے اعتبار سے رہتی ہے، لیکن ہم اس کو ابھی نہیں پڑھ رہے. ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ گنتی کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ تین. واحد، تثنیہ، جمع. واحد کس کو بولتے ہیں؟ سنگولر. واحد کس کو بولتے ہیں؟ سنگولر. اس کی پہچان کیا ہے؟ کل میں نے بتایا، یہ یاد رکھ لو، جس کے لاسٹ میں ایک پیش یا دو پیش. واحد کی پہچان. واحد کی پہچان کیا ہے؟ اوکے. تثنیہ کی پہچان کیا ہے؟ یس. تثنیہ کی پہچان ہے جس کے لاسٹ میں الف نون آ جائے اور یا نون آ جائے.
जमा की पहचान क्या है? जिसके लास्ट में वाव नून आ जाए या नून आ जाए, बस इतनी ही चीज हमने कल पढ़ी। अब इसको मैं रफ करता हूं, ठीक है। इसम ही की तरतीब आगे चलेगी। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं, इसको आप समझिए कि इसम जो रहता है यानी नाउन, ये नाउन कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं बता रहा हूं, जगह पर बताना सही होगा। अभी हम उसका अगला स्टेप जो सेकंड लेसन है वो शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये बुक शुरू करना है ना। तो आपके तकरीबन मेरे इस लेसन को ध्यान से सुनोगे तो 5 लेसन कवर हो गए। मेरी इतनी बातों में कितने लेसन कवर हो जाएंगे? 5 लेसन पूरे। इसलिए अब हम जो पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउंस। क्या बोलते हैं? तो आप हेडिंग लगा लो प्रोनाउन। ये क्यों पढ़ रहे हैं? इसमें से लिंक है ना। नाउन की जगह पर जो यूज हो उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। नाउन की जगह पर जो यूज हो उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जी लिख लो। प्रोनाउन इसको बोलते हैं अरबिक में ज़मीर। आप इसका प्लूरल लिखिए, ज़माइर। क्या बोलते हैं अरबिक में? क्या बोलते हैं? ज़माइर। प्रोनाउन को अरबिक में क्या बोलते हैं? कल के सबक में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा ना। हमने वाहिद तस्निया जमा पढ़ा है जो एकदम इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। अरबिक में क्या बोलते हैं इसे? अरबिक में ज़माइर बोलते हैं। ज़माइर, ज़ाद मीम अलिफ और हमजा, ज़माइर। ठीक है, कितना लिख लिया? अब ये ज़माइर 2 टाइप की रहती है। प्रोनाउन की 2 किस्में। प्रोनाउन की कितनी किस्में? 2 किस्में। इंग्लिश में उसको समझने के लिए बोलते हैं अटैच प्रोनाउन और डिटैच प्रोनाउन। ठीक है, तो अभी हम पहले पढ़ेंगे डिटैच प्रोनाउन, क्योंकि वो पहले आता है। क्योंकि वो किसी भी नाउन से, वर्ब से या सेंटेंस से कोई भी वर्ड रहेगा या कलिमा रहेगा, नाउन रहने दो, वर्ब रहने दो, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, किसी से भी पहले क्या आता है? डिटैच प्रोनाउन। और जो अटैच प्रोनाउन पढ़ेंगे वो हमेशा बाद में आता है। वर्ब के लास्ट में अटैच हो जाएगा या नाउन के लास्ट में अटैच हो जाएगा, इसलिए उसको अटैच बोलते हैं। ठीक है, तो हम डिटैच प्रोनाउन पढ़ रहे हैं अभी। और वो क्या क्या है उसको अरबिक में बोलते हैं ज़माइर मुनफसिला। क्या बोलते हैं? ये नाम याद ना रहे तो डिटैच प्रोनाउन बोल दो, लिख लो, हेडिंग लगा दो। याद तो करना पड़ेगा ना, आपने तो अरबी सीख रहे हैं। डिटैच प्रोनाउन वो भी लिखिए, ज़माइर ज़माइर मुनफसिला। ज़माइर मुनफसिला। ठीक है, दे दो। मोबाइल नहीं है क्या? मोबाइल चेक कर देने का अगर तुम्हें तो। हाँ बाद में लिखिए बराबर। इसका पेन मोबाइल भी नहीं लाया। हाँ नहीं रहने दो, मैं बाद में किसी का जेरॉक्स निकाल लूंगा। नहीं दे, पेज दे दो। क्या पेन नहीं है ना? पेन भी नहीं है। पेन है ना?
लेंगे, जेरोक्स निकालूंगा मैं किसी का। अच्छा ठीक, जेरोक्स और फोटो ले लूंगा। ज़माइर मुनफसिला। ओके, अब इसमें आप अपने नोटबुक के अंदर 3 कॉलम बनाओ इस तरीके से। और यहां पे हेडिंग लगाइए 3rd पर्सन। यहां पे हेडिंग लगाइए 2nd पर्सन। यहां पे लिखिए 1st पर्सन। अच्छा, 3rd पर्सन को अरबिक में क्या बोलते हैं, किसी को पता है? हाँ, इसको बोले नहीं, पर्सन कैसा होता, 3 हो गया ना। 3rd पर्सन को क्या बोलते हैं जो यहाँ मौजूद नहीं? थर्ड पर्सन तो आपने क्या बोला था कि रजुलन बोलते हैं एक। नहीं, वैसे नहीं बोलते। जो यहाँ मौजूद नहीं उसको क्या बोलते हैं? गायब। गायब। क्या बोलते हैं? गायब बोलते हैं ना, गायब। आप 3rd पर्सन कौन रहता है? जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। 2nd पर्सन कौन रहता है? जिससे आप बात कर रहे हैं। 1st पर्सन कौन रहता है? जो बात कर रहा है। ठीक है, तो 3rd पर्सन जो गायब, तो यहां पे लिख दो गायब। अच्छा, 2nd पर्सन जिससे बात कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? हाजिर। हाँ, हाजिर, हाजिर। मुतकल्लिम। हाजिर। क्या बोलेंगे? हाजिर। हाजिर। अच्छा, जो बात कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? मुतकल्लिम। मुतकल्लिम। आगे समझ में इतना? 3rd पर्सन में 6 ज़मीरें रहेगी, यहाँ भी 6 ज़मीरें रहेगी, यहाँ सिर्फ 2 रहेगी। टोटल कितनी हो गई? 6, 12 और 14 ज़मीरें रहेगी। यानी डिटेच प्रोनाउन और अटैच प्रोनाउन में टोटल 14 ज़मीर रहेगी। एकदम इजी है, अभी याद हो जाएगा इंशाल्लाह जी। लिखिए हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम। इसको इंग्लिश में अगर लिखना है जी। हाँ, ये इसमें अभी मेरा कैसा है, मैं मराठी मीडियम से हूँ। मैं इंग्लिश और मराठी और हिंदी अच्छी तरह समझ लेता और बोल लेता, लेकिन मेरे लिए उर्दू और अरबिक थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो मैं ये जो आप बोल रहे हैं ना अभी, जैसा गायब, हाजिर, मुतकल्लिम, ये मैं सब हिंदी में लिखे जा रहा हूँ। तो मुझे आगे चल के इसका कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी? कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ पढ़ना आना चाहिए। आपको सिर्फ पढ़ते आता है। हाँ, बस पढ़ना आना चाहिए। उसका आप प्रोनाउंसिएशन, जो ट्रांसलिटरेशन है, ट्रांसलेशन मत लिखो, ट्रांसलिटरेशन लिखो, बाजू में ट्रांसलेशन लिखो। अच्छा ठीक है, हाँ, जज़ाकल्लाह। सिर्फ पढ़ना आना चाहिए और कुछ नहीं। लिखना ये हमारा बोनस है, यूँ समझो। अगर लिख लिया तो ये बोनस है, ठीक है ना। हुआ, इसको बोलेंगे ही। अच्छा, इंग्लिश में शायद 2 के लिए होता नहीं है, तो आप क्या बोलोगे इनको? वो 2, तो आप दे ही बोलोगे। दे 2 लगा दो आगे समझने के लिए, और यहां पे लगा देना दे और। ठीक है, दे ये 2 है और ये दे और। ठीक है, समझा? हुमा सिर्फ 2, हुमा में सिर्फ 2 जन रहेंगे। 2, वो 2।
अच्छा, अब आप यहाँ साइड में लिख लो, ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों हैं इसको बोलते हैं मेल, ये आदमियों के लिए। और इसके बाद यहां से फीमेल शुरू होगा, तो उसको यहां पे लिख लेना एफ। क्या क्या है वो? हिया, यूसुफ भाई, हाँ ये बोर्ड कवर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे क्या आप? ये मोबाइल या कैमरा और किया हुआ हूँ आगे लेके आगे लेके जाइए, आगे लेके चले। हाँ थोड़ा यानी ये थोड़ा लंबा है एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम है ना यूसुफ साहब। आई मीन कवर हो रहा है लेकिन वो लंबा है थोड़ा, आई मीन थोड़ा क्लोजअप रहा तो अच्छा पड़ेगा इसे। सही है ना ये? हाँ रुको 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 रुको, अभी ठीक है क्या? हाँ बेहतर है, और थोड़ा क्लोजअप हुआ तो सही रहेगा। थोड़ा और हाइट में लीजिए ना, हिया हुआ थोड़ा सा थोड़ा सा ये नहीं हो नहीं दिख नहीं रहा है या छोटा दिख रहा है? नहीं दिख ही नहीं रहा है, कट हो रहा है, वो कैमरे में नहीं आ रहा है। नहीं यहाँ पे तो दिख रहा है, पूरा स्क्रीन में आ रहा है। आप स्क्रीन ऐसे क्रॉस रखिए, लैंडस्केप मोड में रखिए। जी जी इसका उर्दू भी बताते चले, ही दे का वो दो वो सारे क्या उनका क्या होगा? सेकंड वाला हुमा है ना, हुमा, हुन्ना। मौलाना pronunciation जी है? जी, अभी मैं वापस से बोल रहा हूँ, आप लोग उसको प्रोनाउंसिएशन लिख लो। आपने इशारा करना है अपने राइट साइड आदमियों के लिए, और लेडीज के लिए आपने इशारा करना है लेफ्ट साइड, ताकि याद हो जाए। ये इसलिए कि ऐसा दूर करो ताकि समझे कि हम बात कर रहे हैं थर्ड के बारे में, थर्ड पर्सन गायब के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप बोलिए मेरे साथ, हुआ, हुआ, इधर इधर इशारा, और सिंगल एक उंगली से करने का, हुआ, हुआ, हुमा, हुमा, हुम। हुम, हुम में चारों उंगलियां कर, क्योंकि 3 से ज्यादा को, 2 से ज्यादा को प्लूरल बोलते हैं, इसलिए चारों उंगलियां कर देने का। कहीं 3 से सिर्फ 3 मुराद होता है, 4 से मुराद इससे ऊपर जितने भी है। ठीक है, वापस से बोलिए, हुआ, हुआ, हुमा, हुमा, हुम, हुम, वापस से बोलिए, हुआ, हुमा, हुम, वापस से बोलिए, हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम। बोलिए, बोलिए, हुआ हुमा हुम, बोलिए, हुआ, हुमा, हुम, बोलिए, हुआ हुमा हुमा, बोलिए, हुआ हुमा हुम। हुआ हुमा बहुत अच्छा। ठीक है, अब इसका मीनिंग हिंदी में वो हुआ वो जहन में रहता जी। है। आप आदमी बोल नहीं सकते इधर अरबिक ग्रामर में, वो मुराद, क्योंकि कभी भी प्रोनाउन कब यूज करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी इमाम साहब के बारे में, इमाम साहब ऐसा ऐसा बोल रहे थे, मुफ्ती अब्दुल समद साहब अभी यहाँ पर खड़े थे, वो ऐसा बोल रहे थे। अब मैं जो बात करूंगा क्या बोलूंगा, वो ये भी बोले, उन्होंने ये भी बोला, उन्होंने ये भी बोला, वो फिर वहां जा रहे, वो फिर उन्होंने ये भी बोला। तो हम जो बोलते हैं ना, वो सिर्फ माइंड में है, हम बोल रहे हैं क्या वो आदमी इधर, तो ऐसा यहाँ पर मत लिखो, सिर्फ ये माइंड में रहेगा वो। ठीक है, हुमा वो दो आदमी, हुम वो सब। ठीक है, अब ये आप लेफ्ट साइड से इधर इशारा करेंगे, हिया, हिया, हुमा, हुमा, हुन्ना। हुन्ना, वापस बोलिए, हिया, हुमा, हुन्ना, हिया, हुमा, हुन्ना, हिया, हुमा, हुन्ना। हुमा सेम है, हुमा यहाँ भी है, हुमा यहाँ भी है। आपने समझो, मैंने लेडीज के बारे में बात की कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये कहा, ठीक है, और वो दोनों, मतलब कोई दो है, हजरत आयशा के साथ और कोई दो है, तो मैं क्या बात करूंगा, और वो दोनों ये बैठ के इस तरह डिस्कशन कर रही थी, तो वो दो। तो अब मैंने पहले लेडीज के बारे में, आपको पता है हजरत आयशा हजरत सफिया की बात चल रही फॉर एग्जाम्पल, तो अब वो हुमा उधर ही जाएगा ना।
अब आदमी तो नहीं समझेंगे आप, क्योंकि पहले हजरत आयशा और हजरत सफिया ये हदीस में साथ में है। अब जमीर का प्रोनाउन आपने यूज किया तो उधर ही जाएगा, उससे मुराद कोई आदमी नहीं हो। दो आदमी की बात चल रही है, आपने हुमा यूज किया तो जाहिर है वो दो आदमियों की तरफ जाएगा, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं। जी अब वापस से ऐसा बोलिए, हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, हिया हुमा हुन्ना। ये इंग्लिश से इशारा जरूर करते जाइए ताकि आपको ये रहेगा, उससे याद हो जाएगा। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। हाँ जी बोलिए। हुआ हुमा हुन्ना, हिया हुन्ना, हिया हुमा हुन्ना। जी बोलिए। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। जी बोलिए। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। सारे लोग म्यूट हो जाइए तो दूसरों को सुनने में तकलीफ होगी। हाँ हुआ हुमा हुन्ना। नहीं रहने तो कुछ नहीं। नहीं, दूसरों को वहाँ पे सुनना मुश्किल हो जाएगी। हुआ अच्छा हुमा हुन्ना। हाँ बोलिए। हिया हुमा हुआ नहीं सॉरी वापस से बोलिए। हुआ हुमा हुन्ना। नहीं हुम्मा हुम 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 हुआ हुमा हुन, हम्म, हिया हुमा हुन्ना। जी अब बोलिए। हुआ हुमा हुम, जी हिया हुमा हुन्ना। हुन्ना। अब बोलिए। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। आप बोलिए। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। जी अभी आप एकदम बिना इशारे से फास्ट में बोल सकते हैं। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। हमा हुम हो जाएगा। हुआ हुमा हुन्ना, ट्राई करो ना, ट्राई करो ना, ट्राई नहीं करो। हुआ हुमा हुम, हिया हुआ हुन्ना, हिया हुमा हुन्ना। हाँ एक एक हिया हुमा हुन्ना, एक हिया एक हुमा करके हुन्ना। ट्राई करो, एकदम फास्ट में, जितना फास्ट हो सके। जी एक एक कर ताकि सबको याद हो जाएगा। जी हिया हुमा हुम, और हुआ हुमा हुम्मा हुम हुम, हिया हुमा हिन्ना हुन्ना। हुन्ना। जी वापस। हुआ हुमा हुम्मा हिया हुआ हुन्ना। नहीं वापस। हुआ हुमा हुम हुम, हुआ हुमा हिया हुमा हुन्ना। हिया हुआ हुन्ना। नहीं, वापस। हुआ हुमा हुम, हिया हुन्ना, हिया हुमा हुन्ना। जी आप बोल किसी एक को ले लेते हैं। जी से किसी एक को बोल। हाँ यहाँ पे कोई बोल सकता है मुझे, ऑनलाइन जो लोग बैठे हैं, एक सांस में कोई बोल सकता है। हाँ मैं बोलता हूँ। जी बोलिए। हिया हुमा हुन्ना। जी बहुत अच्छा। और कोई बोल सकता है ऑनलाइन? कौन है? अलीम, अजमत, इलियास भाई। कोई बोल सकता है? हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। कोई बोल सकता है? फास्ट। हिया हुमा हुन्ना। बहुत अच्छे, गुड। और कोई बोल सकता है? वापस से बोलो। गली में बोल नहीं, कुत्ते दौड़ाए। हाँ हाँ अभी सही। और कोई ऑनलाइन बोल सकता है? हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। जी बहुत अच्छे, गुड। और कोई? सब हो गए? 4 ही लोग हैं। जी आप बोल सकते हैं। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। जी आप बोल सकते हैं। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। जी आप हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। बहुत अच्छे, आप बोल सकते हैं। हिया हुमा हुन्ना। अच्छे, हिया हुमा हुन्ना। हुआ 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 हुमा हुम, हिया हुन्ना, हिया हुमा हिन्ना हुन्ना हुन्ना। हुन्ना। जी हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। बहुत अच्छे, गुड। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। हो गया यार, भूलेंगे नहीं? नहीं, याद भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी ओके। अभी हम ये इतना ही रखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कैसे करना है वो बताता हूँ। उसके लिए आप
1 2 3 हेडिंग लगाइए हुरूफ इस्तिफहाम, उसको बोलते हैं क्वेश्चनेबल वर्ड्स। क्या लगाएंगे? क्वेश्चनेबल वर्ड्स, उसको उर्दू में बोलते हैं हुरूफ इस्तिफहाम। ये टेबल आप लोग खत्म मत करना, बनी हुई रहने दो, अलग से लिखो। ये कल इसमें और चीजें आएगी, ठीक है? इसलिए इसको बंद मत करना, इधर कुछ लिखना नहीं, मैं सिर्फ इतना ही मिटा रहा हूं। यूज करूंगी जी। आप हेडिंग लगाएंगे हुरूफ इस्तिफहाम। अलग पेज पे लगाओ, नया पेज पे अलग से हुरूफ इस्तिफहाम। हुरूफ इस्तिफहाम को इंग्लिश में लिख लो क्वेश्चनेबल वर्ड्स। इस्तिफहाम, इस्तिफहाम, हाँ इस्तिफहाम, इस्तिफहाम, ठीक है? अच्छा, इसमें जो है नंबर डाल के ऐसा लिखते जाओ। सबसे पहला लिखेंगे माँ, मीन्स व्हाट। माँ का मतलब है व्हाट। हुरूफ इस्तिफहाम में पहला वर्ड है माँ, मीम वाली ज़बर माँ, इसका मतलब है व्हाट, क्या, ठीक है? दूसरा वर्ड है मौलाना, इसका मीनिंग क्या बताया आपने? समझा नहीं। व्हाट, क्या, क्या, व्हाट, क्या, व्हाट इज दिस बोलते हैं, व्हाट इज दिस। ओके, क्या, ओके, क्या। इसका आप दूसरा लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। इसका मतलब भी क्या, लेकिन फर्क है, बताता हूं। इसका मतलब भी है क्या, सेम। इंग्लिश में जो है इज आर एम बोल सकते हैं, इज लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे आर्टिकल में इज, आर्टिकल समझ, ये इज स्टार्टिंग वाला, इज बीच वाला नहीं। इज दिस इज दिस अ कार, इज दिस अ पेन, इज दिस अ बुक, इज दिस अ हॉल। तो इस तरीके से ये वाला जो इज है, इसका मीनिंग आता है अरबिक में हल। इसको हिंदी में जब हम बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं, क्या ये बुक है, वो वाला क्या, क्या ये पेन है, क्या ये मस्जिद है, ऐसा। तो उसके लिए हल यूज करते हैं। तो ये इज जो है वो वाला, जोर देकर पूछना। अच्छा, और ये जो क्या है, इसका मतलब जो क्या है, ये बीच में आता है। जैसे ये क्या है, आपका नाम क्या है, तो बीच में आया। ये क्या है, ये क्या है, पहले ये आया ना, फिर आया क्या, तो ये वाला माँ बीच में आता है। ये क्या है, तो बोलेंगे माँ हाजा, ये क्या ठीक है? ये क्या है, तो बाद में आया ना क्या, तो उसके लिए मालक। जो क्या पहले आता है उसके लिए हल लगता है। अच्छा, इसके जैसा एक और वर्ड है जिसका सेम मीनिंग है, उसको बोलते हैं अ। अच्छा, हमजा जबर अ। अच्छा, इसमें अगर एक से ज्यादा होंगे तो सब उसके लिए एक ही है, एक ही आएगा, क्योंकि अगले सेंटेंस में जो चीज ज्यादा है उसके बारे में वो हो जाएगा। ठीक है? इधर आवाज नहीं आ रही, समझ में आ रहा अब्दुल हमीद भाई? हाँ, आ रही आवाज आ रही है, समझ में आ रहा। अभी आप लिखेंगे मन। मन मीन्स हु, कौन, कौन, हु।
कोल। अब ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, अभी हम ये यहाँ पे इतना ही रखते हैं। कितने वर्ड हो गए? 1 2 3 4, ठीक है। ये जगह खाली रखना और आते जाएंगे, ठीक है। जैसे ये जगह आपने खाली रखी, इसके लिए 2 बॉक्स, ठीक है। अभी हम इसको यूज करते हैं। अभी ये जो है, इसको मैं अगर पूछूंगा उसके साथ यूज करूंगा तो इस ऐसे पूछूंगा, माँ हुआ, माँ पहले लगाऊंगा। क्वेश्चनेबल वर्ड हमेशा पहले लगता है। माँ हुआ मतलब क्या हुआ? वो कौन? नहीं, क्या वो क्या है? क्या माँ हुआ का मतलब क्या हो गया? वो क्या है? अब समझो, मैं माँ हुआ, वो क्या है? वो क्या है मतलब क्या है? जो बुक के बारे में बात चल रही थी उसी के बारे में वापस से मैंने क्वेश्चन किया, सवाल किया, वो क्या है? ये समझाने के लिए बोलता हूँ, कहाँ पर यूज होगा वो आ जाएगा। माँ हुआ, वो क्या है? क्या मौलाना इधर एक अभी वो जो है आपने वो बोले, ये इंग्लिश में अपन ईट यूज करते, तो ये अरेबिक में ही और ईट यानी कि ये दोनों सेम रहता है। इट के लिए और ही के लिए हुआ ही आएगा, वो ही आएगा। हाँ, ही और इट दोनों के लिए हुआ आएगा, शी और इट दोनों के लिए ही आएगा, ठीक है। चलिए अब मैं हल हुआ मुस्लिमुन, क्या हल हुआ मुस्लिमुन, क्या वो मुसलमान? क्या वो मुसलमान है? तो जवाब क्या आएगा? नाअम। क्या बोलेंगे? नाअम, नाअम हुआ मुस्लिमुन। जी हाँ, वो मुसलमान। नाअम हुआ मुस्लिमुन। वापस से पूछता हूँ, हल हुआ मुमिनुन। क्या बोलेंगे? नाअम हुआ मुमिनुन। हल हुआ यूसुफ, हल हुआ यूसुफ, तो क्या बोलेंगे? नाअम हुआ यूसुफ। हल हुआ तिलमीजुन, तिलमीज शागिर्द को बोलते हैं। हल हुआ तिलमीजुन, नाम हाज़ा तिलमीज़। नाम तिलमीज़ो, तिलमीज भी है और खुद उस्ताद भी है, सब है जी। ओके, हल हुआ अखुन, क्या वो भाई है? हल हुआ अखुन, तो क्या बोलेंगे? नाम हुआ अखुन। हल हुआ मुस्लिमान, हल हुमा मुस्लिमान, हुमा मुस्लिमान, नाम हुमा मुस्लिमान, 2 के लोगों जी। अभी आते जब हल हुम मुस्लिमून, जमा पूरा नाम हुम मुस्लिमून। हल हिया मुस्लिमतुन, ये बताया था मैंने, बताया था ना, बोलता लगता है तो फीमेल के लिए। तो मुस्लिम के लास्ट में ये बता दूंगा। मुसलमान कोई भी वर्ड है जो इधर भी यूज होता है, इधर भी यूज होता है, तो आपने उसको मेल से फीमेल कैसे बनाना? लास्ट में गोलता लगा, लास्ट में गोलता लगा दो। और जो वर्ड ऑलरेडी फीमेल है उसको गोलता लगाने की जरूरत है। जैसे जैनब, जैसे मरियम, जो ऑलरेडी है उसके लिए गोलता लगाने की जरूरत नहीं। जो वर्ड कॉमन होता है इधर भी तो आप उसको फीमेल